So before we go ahead to the next topic, we will very quickly revise what we have learned in the last session. So last lecture में we have started off with new chapter मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अब मैं ज़्यादा बेसिक्स में जाऊंगा नहीं, जो हमको आज लगने वाला है उतना ही हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे. बट अ फ्यू डेफिनेशंस ऑफ कोर्स. सो यू शुड नो व्हाट इज इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल या ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच the body regains its original shape and size after removal of external deforming force is known as elasticity, and the body which possesses the property of elasticity is called as elastic body. तो ऐसे bodies जिसमें external deforming force remove करने के बाद they regain their original shape and size are called as elastic bodies, and the property by virtue of which a body does not regain its original shape and size after removal of external deforming force is known as plasticity, and the body which possesses property of plasticity is known as plastic body. तो सिंपल है elasticity. एंड देन एज यू रिमेंबर, elasticity स्टडी करने के लिए हम लोगों ने दो बेसिक पैरामीटर डिफाइन किए थे, एक था स्ट्रेस, एक था स्ट्रेन. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जिसको तुम अप्लाइड फोर्स बोलते हो या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हो, ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं. तो stress can also be defined as applied force per unit area. तो stress is force upon area, and force के dimensions है m1 l1 t minus 2 on area is l2. तो m1 l minus 1 t minus 2. तो stress के dimensions and pressure के dimensions are same. Then we have seen SI unit of stress, Newton per meter square. Then we have defined something called as strain. Remember? Change in dimensions per unit original dimensions. So strain is the ratio of two similar quantities. Change in dimensions जैसे change in length upon length, change in volume upon volume. तो change in dimensions upon original dimension मतलब ये dimensionless quantity आएगा. It has no dimension, it has no unit, it is just a number. Good. इसके बाद हमने देखा था 3 types of stress and 3 types of strain. अब वो 3 टाइप के स्ट्रेस और 3 टाइप के स्ट्रेन मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू और जो भी हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था उसके थ्रू बता दूंगा एक बार, क्योंकि अब ये फॉर्मूलाज वापस लगने वाले हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर, पहला टाइप का स्ट्रेस हमने डिफाइन किया था टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस. एंड रिमेंबर, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी like a wire or a rod, then the associated stress is known as tensile stress or longitudinal stress. Correct? पक्का. तो ये याद रखना. In this case, the applied force is producing change in length of a body, and the associated stress is called as tensile or longitudinal stress. To derive the equation of the same, हम लोगों ने एक वायर लिया था which has some length L. उस वायर को हमने vertically suspend किया था from a rigid support, just like this. उसके नीचे हमने लोड लगा दिया. दिस लोड मतलब दिस वेट एक्ट्स एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स, बिकॉज ऑफ विच लेंथ चेंज हो गया, लेंथ इंक्रीज हुआ बाय अमाउंट डेल्टा एल या फिर स्मॉल एल. तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज mg क्योंकि यहाँ पे लोड है, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज पाई आर स्क्वायर. तो टेंसाइल स्ट्रेस बन गया तुम्हारा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर. एंड टेंसाइल स्ट्रेन, if you remember, we define tensile or longitudinal strain as the ratio of change in length upon original length. What is change in length? Delta L. What is original length? L. Good. Now similarly, हमने define किया something called as volume stress या फिर volumetric stress या फिर hydraulic stress. When deforming force or applied force produces change in the volume of a body like a cube or a sphere, then the associated stress is known as volume stress or volumetric stress or hydraulic stress. And remember, to derive formula for this, हमने एक क्यूब इमेजिन किया था जिसको हम लोगों ने लिक्विड लाइक वाटर में सबमर्ज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो लिक्विड हर डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट कर देगा, बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम विल डिक्रीज. तो हर डायरेक्शन में देयर इज सम फोर्स. और ये क्यूब है, मैं सिर्फ फ्रंट फेस बता रहा हूँ, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो ऑल द 6 फेसेस विल बी प्रेस्ड इनवर्ड्स इक्वली, सो देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम v मान लिया, फाइनल वॉल्यूम इज v माइनस dv, बिकॉज dv इज द चेंज इन वॉल्यूम इन दिस केस. और जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड वो df है.
और जो टोटल एरिया है क्यूब का वो ए है। तो अभी देखो ये डी एफ तुम एक साइड पे एक फेस पे फोर्स मान रहे हो तो एरिया ए एक फेस का मान लेना। अगर तुम बोलते हो कि टोटल फोर्स डी एफ है पूरे क्यूब पे तो टोटल एरिया को ए मान लेना इन शॉर्ट। तो व्हाट इज स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, अप्लाइड फोर्स, व्हाट इज अप्लाइड फोर्स इन दिस केस, डी एफ अपॉन एरिया, तो डी एफ अपॉन ए जो हो जाता है डीपी। डीपी इज चेंज इन प्रेशर। और मैंने आपको ये बताया था कि रिमेंबर जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आपको पहले बोला है कि द ऑब्जेक्ट वॉज इनिशियली केप्ट इन एयर दैट इज एटमॉस्फेयर, तो इनिशियल प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵ पास्कल। पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर वही ऑब्जेक्ट तुमने किसी लिक्विड में डाल दिया तो अब प्रेशर बढ़ गया, तो चेंज इन प्रेशर डीपी विल बी फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल। कई बार हमको बताता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था। तो जब पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था ये बताया नहीं हो तो इनिशियल प्रेशर 0 मान लेना। सो डीपी इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर बिकॉज इनिशियल इज 0। गुड। देन हमने डिफाइन किया था वॉल्यूम स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो माइनस डी वी बाई वी, माइनस बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। गुड। इसके बाद हमने डिफाइन किया था शेयरिंग स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस रिमेंबर व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। और मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग स्ट्रेस समझने के लिए एक क्यूब इमेजिन कर लो जिसका जो बेस है, तो वी हैव अ क्यूब ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसका जो बेस है ए बी सी डी इट इज फिक्स्ड। इसको रिवाइटेड बोलते हैं, रिवाइटेड मतलब फिक्स्ड। और हम लोग इसके टॉप सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें। टेंजेंशियल, नॉर्मल फोर्स विल नॉर्मली प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम। जब फोर्सेस नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब फोर्स टेंजेंशियल हो तो वो चेंज इन शेप प्रोड्यूस करता है। और नीचे का फेस फिक्स होना चाहिए। अगर नहीं किया और तुमने फोर्स लगा दिया तो द ऑब्जेक्ट में मूव, वो फिर मोशन में गया, काइनेमैटिक्स। गुड। तो इसका शेप बन गया पैरेललोपिपेड ए बी सी डी ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश। ओके। तो शेयरिंग स्ट्रेस इज इन दिस केस इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एफ टी बाई ए शेयरिंग स्ट्रेस। अब शेयरिंग स्ट्रेन हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, तो इसके लिए मैं डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं इट इज द रेशियो ऑफ लास्ट बेंच, यहाँ ध्यान होना चाहिए। Irrespective of you are on the first bench or you are on the last bench, you have to pay attention here. So shearing strain is defined as relative displacement of any layer, क्योंकि देखो बेस को छोड़ के सारे ही लेयर डिस्प्लेस हो गए, तो उसमें कोई भी एक लेयर इमेजिन कर लो, टॉप इमेजिन कर लो। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। तो जिस लेयर का मैं डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ उसी का डिस्टेंस फिक्स लेयर से। तो इफ यू लुक एट द टॉप लेयर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जी जी डैश या फिर एच एच डैश या फिर एफ एफ डैश या फिर ई ई डैश। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट्स, एच एच डैश, जी जी डैश, ई ई डैश, एफ एफ डैश। और इन लेयर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर कितना होगा, एच ए, जी बी, एफ सी और ए डी। गुड। ओके। फिर मैंने क्या किया, सिर्फ ये एच एच डैश को डेल्टा एल बोल दिया था और इसको क्या बोल दिया था, एल। तो बेसिकली आपका जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो बन गया डेल्टा एल बाई एल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। लेकिन इस एंगल को थीटा मान लिया तो व्हाट इज टैन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन, तो डेल्टा एल अपॉन एल। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो डेल्टा एल बाई एल था वही क्या बन गया, टैन थीटा। एंड इफ थीटा इज स्मॉल तो टैन थीटा इज थीटा। तो हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन को थीटा से या फिर टैन थीटा से या फिर डेल्टा एल बाई एल से डिनोट करेंगे। यहाँ तक का स्टोरी आपको पता है। अब इसके आगे जाने से पहले यू शुड नो व्हाट इज हुक्स लॉ। इम्पॉर्टेंट है, काम का है, बहुत काम का है इस चैप्टर के लिए। तो पहले स्टेटमेंट अच्छे से सुन लेना, विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी इलास्टिक लिमिट क्या है हम हुक्स लॉ में ही लास्ट में डिफाइन कर देंगे। अभी फिलहाल याद रखो इलास्टिक लिमिट नाम की कोई चीज़ होती है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये है हुक्स लॉ का स्टेटमेंट। तो इट स्टेट्स दैट
within elastic limit, stress produced in a body, stress applied on a body is directly proportional to strain produced in a body. तो stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. It's not difficult at all. ज़्यादा क्या कम क्या. स्ट्रेस मतलब क्या होता है इन जनरल? फोर्स अपॉन एरिया. वेरी गुड. तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो जब मैं बोलता हूँ स्ट्रेस मतलब मैं बोलता हूँ फोर्स. एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. मतलब स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ. मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ. लेट्स टेक अ वायर विच इज 10 मीटर लॉन्ग. उसको वर्टिकली हैंग कर दिया फ्रॉम रिजिड सपोर्ट. नीचे अब तक मैंने कोई भी वेट लोड या फिर अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया है. नाउ आई पुट अ 1 kg लोड. और जब मैं बोलता हूँ 1 kg मतलब 1 into g. mg होता है ना वेट. तो इमेजिन वो 1 kg लोड की वजह से जो 10 मीटर लंबा वायर था वो 11 मीटर का हो गया. तो 1 g लोड उसका कुछ स्ट्रेस आएगा. तो स्ट्रेस फॉर गिवन स्ट्रेस कितना चेंज इन लेंथ हुआ? 1 मीटर. मतलब देयर इज अ गिवन स्ट्रेन. फॉर अ सर्टन स्ट्रेस देयर इज सर्टन स्ट्रेन. अगर मैं अब स्ट्रेस बढ़ाता हूँ, स्ट्रेस कैसे बढ़ाओगे? बाय इंक्रीजिंग द लोड. स्ट्रेन बढ़ेगा कि नहीं? मतलब चेंज इन लेंथ बढ़ेगा कि नहीं? और यस, फॉर एग्जांपल 2 kg लगा दिया तो नाउ द न्यू लेंथ विल बी 12 मीटर. तो फॉर 1 kg चेंज इन लेंथ वाज 1 मीटर. फॉर 2 kg इट इज 2 मीटर. मतलब फोर्स बढ़ रहा है तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ रहा है. मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है. तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. बट ये एक लिमिट तक होता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. So within elastic limit, stress is directly proportional to strain. This is the statement of Hooke's law. So therefore, stress is proportional to strain. So therefore, stress equals to some constant into strain. अब ये जो सम कांस्टेंट है नॉर्मली इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं. वैसे ये ई तुमको पता भी होगा. तो हमने साउंड नाम का चैप्टर देखा था कि हमने साउंड नाम का चैप्टर सीखा. हाँ, वेरी गुड. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ इन जनरल एनी वेव, चाहे वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो? अंडर रूट ऑफ इतना याद आया. अंडर रूट ऑफ ई बाय डेंसिटी. मैंने बोला था कि ये ई जो है ना ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आगे आएगा. ये आगे आ गया. तो स्ट्रेस इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन. तो ये जो कांस्टेंट है ई, इसको बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो रिमेंबर, स्ट्रेस, the ratio of stress to that of strain is a constant, क्योंकि constant है, and this constant is known as modulus of elasticity. So the ratio of, therefore the ratio of stress to that of strain is a constant and is known as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Hopefully यहाँ तक clear. बहुत simple है. According to Hooke's law, within elastic limit, stress is proportional to strain. So stress is equal to some constant into strain. So that constant is called as modulus of elasticity and is the ratio of stress to that of strain. Good. पक्का पक्का. अब इमेजिन कि मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन का. तो लेट अस प्लॉट अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. क्योंकि हमने बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. और अगर आपने नोटिस किया होगा हमने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? स्ट्रेस. मतलब दिस इज आवर वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? स्ट्रेन. सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस. तो डू यू सी इट इज y इक्वल्स टू mx. y इक्वल्स टू mx मतलब व्हाट इज द शेप? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
origin. So it is a straight line passing through origin. Something like this. Good. So remember, if you plot graph of stress and strain, you will see it is a straight line passing through origin, and you will also see कि ये जो कांस्टेंट है जिसको तुमने क्या बोला, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या है? स्लोप है. किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. सो रिमेंबर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ, therefore modulus of elasticity is the slope of stress strain graph. स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक ही बात है. यहाँ तक क्लियर? Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. So stress equals to some constant into strain. That constant is called as modulus of elasticity. So it is the ratio of stress to that of strain. And on a graph, stress strain curve looks like a straight line passing through origin, and the slope of that line is modulus of elasticity. अब हमने जो लिखा था within elastic limit, अब इसको define कर देंगे. देखो, elastic limit first of all always remember, elastic limit is the value of stress. किसकी वैल्यू है? stress up to which stress strain graph is a straight line. क्योंकि जब तुम आगे देखोगे ये पूरा पिक्चर नहीं है, ये हमने एक पार्ट ऑफ द टोटल ग्राफ प्लॉट किया है. वी जस्ट प्लॉटेड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. तो इलास्टिक लिमिट is the maximum value of stress up to which stress strain graph is a straight line, या फिर it is the maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain. क्योंकि जब तक stress is directly proportional to strain आएगा तो ही वो straight line आने वाला है. तो elastic limit is the maximum value of stress. Elastic limit is the maximum value of stress. Is the maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain. Directly proportional to strain. इसका मतलब it is the maximum value of stress up to which stress strain graph is a straight line. अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसके 3 टाइप्स है. सो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि 3 टाइप के स्ट्रेस थे, 3 टाइप के स्ट्रेन थे, तो 3 टाइप के स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो आएंगे. क्योंकि ये मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, ये पहले टाइप का मॉडुलस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे यंग्स मॉडुलस, और डिनोट कर देंगे इसको Y से, कैपिटल Y. दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इसका जो रेशियो होगा उसको बोल देंगे हम लोग बल्क मॉडुलस. नोट करेंगे बीटा से या फिर के से. कोई बुक्स में के होता है, कोई बुक्स में बीटा होता है. देन शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको नोट करेंगे हम ईटा से. ओके, तब एक एक करके हम लोग ये तीनों के तीनों, all 3 we will see one by one. So the first one is Young's modulus, और मैं राइट अप तीनों का सेम रखने वाला हूँ so that it will be easy for you to remember also. Young's modulus denoted by Y. So it is the modulus of elasticity associated with change in length of a body like a wire or a rod. तो यहाँ पे
मॉड्यूलस इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, क्योंकि आपको याद होगा शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेन में क्या चेंज होता है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन में क्या चेंज होता है, लेंथ. सो इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, it is a modulus of elasticity associated with change in length of a body, like a wire or rod. गुड. इसका और एक नाम है, इसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ. इट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ. ओके, बाय द वे, जस्ट टू गो बैक टू दिस रेशो, क्योंकि फिर 3 बार लिखना पड़ेगा मेरे को, मैं 3 बार नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिख के बता देता हूँ. ये जो रेशो था जिसको तुमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला है, ये क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो इसके ऐसा यूनिट्स क्या आएंगे, स्ट्रेस के यूनिट्स क्या थे, नहीं यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन के थे नहीं. मतलब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और उसके डायमेंशंस भी m1 l माइनस 1 t माइनस 2. मतलब प्रेशर के, स्ट्रेस के और मॉड्यूलस के तीनों के डायमेंशंस और यूनिट्स सेम आते हैं. अभी इधर लिख दिया, फिर वो 3 बार लिखना पड़ता, नहीं तो मुझे यंग्स के लिए भी, बल्क के लिए भी, और ऑफ कोर्स थर्ड वन रिजिडिटी के लिए भी. तो अभी नहीं लिखूंगा. अभी इट इज़ क्लियर दैट ऑल दीज 3 हैव द सेम डायमेंशंस, सेम यूनिट्स. कौन से 3? प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉड्यूलस. Okay, then it is defined as the ratio of tensile stress to that of tensile strain. So it is defined as the ratio of tensile stress to that of tensile strain. गुड. अब जैसे फिजिक्स में हर एक पैरामीटर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जांपल स्पीड क्या बताता है आपको, कि हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ. व्हाट डज एक्सेलरेशन टेल यू, हर सेकंड में कितना स्पीड चेंज हुआ, राइट. तो सिमिलरली ये जो यंग्स मॉड्यूलस है, ये भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. तो यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू चेंज इन इट्स लेंथ. तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिमेंबर, इसलिए मैं बोला था थ्योरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नो दिस. हम जब किसी भी एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे हम इलास्टिसिटी का स्टडी करें तो इलास्टिक बॉडी की बात होगी यहाँ पे. हम जब किसी भी एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल का क्या होता है, दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर दे डेवलप इंटरनल फोर्सेस विच आर कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्सेस, और वो फोर्स हो जाएगा अट्रैक्टिव इन दिस केस. इसका मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको अपोज कर रहा है. क्या कर रहा है? इसका मतलब जिस मटेरियल में डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, वो मटेरियल चेंज को अपोज करता है. क्या करता है? अपोज. तो सिमिलरली यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स द अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज इन इट्स लेंथ. क्योंकि जब तुम लेंथ चेंज करने की कोशिश करोगे तो वेट लगाओगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उसकी वजह से मटेरियल के अंदर क्या डेवलप होगा? इंटरनल फोर्सेस. मतलब वो फोर्सेस क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस. दे आर ऑफरिंग रेजिस्टेंस, दे आर ऑफरिंग अपोजिशन टू द चेंज इन लेंथ. क्लियर? ऐसे भी मटेरियल होते हैं ना, तो वायर बना दो एक मटेरियल का, नीचे लोड लगा दो, टूट गया, या तो परमानेंटली इलांगेट हो गया, तो वहाँ पे अपोजिशन ऑफर हुआ क्या? नहीं.
सिंपल। तो रिमेंबर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हमको ये बताएगी कि मटेरियल ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया टू द चेंज इन लेंथ। तो इट मेजर्स, यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स, Young's modulus measures the opposition offered by a material, to change in its length. मतलब it measures the opposition offered by a material when an attempt is made to bring a change in its length. मैंने शॉर्टकट करके लिख दिया वो। क्लियर यहाँ तक? तो बस 4 ही पॉइंट याद रखना है। नंबर वन it is the modulus of elasticity associated with change in length of an object. Number 2, it is known as elasticity of length. Number 3, it is the ratio of tensile stress to that of tensile strain. And number 4, it measures opposition offered by a material when there is an attempt to change in its length. तो अभी फिर वही स्टोरी सेम है। मैंने इसलिए बोला था ना कि आपको आज रिवाइज क्यों करवाया टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि अभी इसके आगे स्टोरी वही है। फिर तुम वही करोगे, कंसीडर अ वायर व्हिच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, लेट L be the length of the wire, let the free end of the wire is loaded with a weight mg, because of which there is elongation which is delta L. तो देखो ऐसा है, ये यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल लेंथ था और ये चेंज इन लेंथ हो गया, इंक्रीज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल या स्मॉल एल। ये वायर का रेडियस r मान लेना, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। सिंपल है, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। दिस इज लोड mg विच इज एक्टिंग एज अप्लाइड फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स। तो याद रखना, बिल्कुल याद रखना, सिंपल है ये। वही है सब, हमने ऑलरेडी टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन में लिखा था ये। कंसीडर अ वायर हैंगिंग और सस्पेंडेड, बेटर वर्ड, वायर सस्पेंडेड vertically from a rigid support as shown। तो हमने डायग्राम में बता दिया। फिर जितने भी पैरामीटर लगने वाले उसका लिस्ट बना के छोड़ते हैं। लेट कैपिटल L be the length of wire, this is the original length of wire, initial length of wire। उसके बाद हमने लगा दिया लोड which is applied force, then you have delta L which is change in length, then you have R which is radius of wire, then you have area of wire which is pi r square। इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि वायर, दिस इज अ वायर, लाइक अ वायर, नॉट रियली वायर। इसके 2 सेक्शन होते हैं, वन यू कट इट लाइक दिस, मैंने बताया था आपको, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अलॉन्ग द लेंथ। तो अलॉन्ग द लेंथ काटने के बाद जो भी सेक्शन बचेगा इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर मैं लेंथ को परपेंडिकुलर कट करता हूँ दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। तो A equals to pi r square is cross sectional area of wire, cross sectional area of wire। ओके, यहाँ तक कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि डाउट ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सब रिपीट ही हो रहा है। देन वी नो दैट, डू यू नो दैट? ऑफ कोर्स यू मस्ट नो दैट। क्या हमने टेंसाइल स्ट्रेस लास्ट लेक्चर में सीखा था? हाँ। क्या हमने आज रिवाइज किया? हाँ। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स हियर? व्हाट इज एरिया हियर? पाई आर स्क्वायर। गुड। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? बताइए। चेंज इन लेंथ बाय
original length, which is delta L by L. Also, we have defined Young's modulus to be equal to ratio of tensile stress to that of tensile strain. So you have y equals to mg by pi r square, that is tensile stress. जागो जागो जागते रहो. Be awake and stay with me. I am also very sleepy. तुम सो जाओगे तो फिर मेरे लिए जागने का कोई कारण नहीं बचता है, तो ध्यान दो. गुड. होता है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल ह्यूमन थिंग. अनफॉर्चुनेटली वी ह्यूमंस आर वीक डीएनए क्रिएचर्स. हम लोगों को आराम की ज़रूरत पड़ती है अनफॉर्चुनेटली. तो ये हो गया यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला. नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग साइंस. साइंटिफिकली यू नीड सम रेस्ट एवरी डे. अनफॉर्चुनेटली वी शुड बी लाइक रोबोट्स वर्किंग ऑल डे 24/7. सर ध्यान दो यहाँ पे. गुड. वो तुम्हारी नींद उड़ाने गया था, ध्यान दो. अब बोलना मत मैंने बोला सोना नहीं है, जागते रहो. नो, यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट. गुड. ओके, पक्का पक्का. तो बन गया ना फॉर्मूला यंग मॉडल्स का. एंड अभी इसके आगे कुछ नहीं है. इट इज टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन. तो टेंसाइल स्ट्रेस इज mg by pi r square एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज डेल्टा L by L. तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन इज y. तो mg by pi r square by delta L by L, so it becomes mg L by pi square delta L. इसको a बोल देना, ठीक है, इसको f बोल देना. तो f L अपॉन a डेल्टा L याद रखने में आसान होता है. देन सेकेंड टाइप एस. अच्छा, क्योंकि आई टोल्ड यू कि मैं लगभग चीज़ों को सेम रखने वाला हूँ फॉर यू टू रिमेंबर इजीली, तो मेरा भी थोड़ा काम कम हो जाएगा. आई कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस इन एग्जाम, तो यू डोंट डू इट, आई विल डू इट. तो ध्यान देना. दूसरा है कौन सा मॉडुलस? बल्क. बल्क का हल्क नहीं, बल्क मॉडुलस. इसको नोट करेंगे बीटा से या फिर के से. बीटा और के, बीटा और के. गुड. चलो ध्यान दो यहाँ पे. जैसे तुमने पिछले केस में बोला, इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन लेंथ. यहाँ पे क्या बोलेंगे? change in volume, because that is volume stress by volume strain. So it is the modulus of elasticity associated with change in volume of a body, like a sphere or a cube. So change in volume. The modulus of elasticity associated with change in volume of a body, like a sphere or a cube. क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम तो तब होगा जब वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम तो 3D ऑब्जेक्ट के पास होता है ना. इट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम. गुड. ऑफ वॉल्यूम. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन. गुड. ओके ओके. देन जैसे तुमने यहाँ बोला, इट मेजर्स, इट मतलब यंग्स मॉडुलस, वहाँ पे यंग्स मॉडुलस, यहाँ पे बल्क मॉडुलस. सो इट मेजर्स द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू चेंज इन इट्स वॉल्यूम. वहाँ पे लेंथ था, यहाँ पे वॉल्यूम. तो जब एक ऑब्जेक्ट का तुम वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करोगे तो ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अपोज इट. इट विल ऑफर रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होंगे, तो वो चेंज इन वॉल्यूम को रेजिस्ट करेगा. कितना रेजिस्टेंस हुआ वो बताता है कौन? बल्क मॉडुलस. इसके बाद फिर वही है, जैसे हमने वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए एक क्यूब लिया था, यहाँ पे भी एक क्यूब ले लो. फिर इस क्यूब को हमने एक लिक्विड लाइक वाटर में सबमर्ज कर दिया था, और बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम हुआ था चेंज. Because of which change in volume.
तो कुछ नहीं, वॉल्यूम था V, फिर वॉल्यूम हो गया V माइनस डी वी, क्योंकि जो सराउंडिंग में जो लिक्विड है वो हर डायरेक्शन से क्या अप्लाई करेगा, फोर्स, या फिर देयर विल बी एडिशनल प्रेशर, यू कैन से फोर्स बोल दो, एक्स्ट्रा प्रेशर बोल दो, एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग. You can call whatever you want. You want to say extra force, okay. You can want to say extra pressure, that is also okay. So the initial volume is V and the final is V minus dV. और सिर्फ यहाँ पे जो फोर्स है ना वो नॉर्मल होता है, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ही वॉल्यूम चेंज कर पाएगा, नॉट द टेंजेंशियल वन. टेंजेंशियल वन विल चेंज शेप. फिर स्टोरी वही है, ये सब तुमने ऑलरेडी लिख के रखा है. कंसिडर a cube made up of rubber submerged in a liquid like water. Let V be its initial volume. Let dF be the extra force due to the liquid that is water. Let A be the area of each phase. बोल रहे हैं तो टोटल क्यूब का बोल रहे हैं, एक ही बात हो गई, राइट. तो वो सब सेम ही है. There dV is the change in volume because of the extra force. तो consider a cube made up of rubber. अभी ये made up of rubber बार बार बोलने की जरूरत नहीं है. हम रबर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, एप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है. एप्रिशिएबल मतलब मेजर तो होना चाहिए ना. डाल दिया लिक्विड में, बोले वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा. अब तो वॉल्यूम चेंज होने के लिए मटेरियल वैसा लेना पड़ेगा. सो टू प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ चेंज सो दैट यू कैन मेजर, इसलिए रबर. स्टील भी ले सकते हैं वैसे, बट स्टील के लिए फिर सराउंडिंग में जो वाटर है वो काम नहीं आएगा. यू हैव टू पुट अनदर टाइप ऑफ लिक्विड विच कैन एक्सर्ट मोर फोर्स, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो. सो कंसिडर अ क्यूब मेड अप ऑफ रबर submerged in water, in a liquid like water. Okay, good. Let V is the original initial, जो भी बोलना हो बोल दो, वॉल्यूम. Then dF is the additional force, extra force, applied force. applied force बोलो सबसे बेटर हो. applied force, it is applied force, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. A be the area of the cube, of course. इसके बाद dV is the change in volume, that will be decrease in volume in this case. change in volume हो गया. गुड. तुम बताओगे what is volume stress? तुम बताओगे what is volume stress? WKT, I should say YKT, you know that. Do you know that? जल्दी बताओ, आज रिवाइज करवाया मैंने, जल्दी बताओ. dF by A, applied force by area. dF by A, what is dF by A? dP, change in pressure. अब तक खत्म हो जाता. मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि तुमको याद रखना है ये. अब तक हो जाता. गुड. 3 lectures are sufficient enough to wind up this chapter. तो थोड़ा स्लो जा रहा हो because you have to remember this. What is volume strain? बताइए. dV by, of course you can put or you may also omit, you मतलब छोड़ दो उसको. देखो सिर्फ माइनस साइन बताता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, दैट्स इट. अभी तुमको अगर से मैग्नीट्यूड वाइज बात करने की तो डू नॉट राइट, डजंट मैटर. डायमेंशन तो चेंज हो गए, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है. एनीवेज, तो अब also did we just say that bulk modulus is the ratio of volume stress to that of volume strain? So beta is volume stress to that of volume strain. And volume stress अभी हमने देखा dP, और ये था dV by V with a minus sign, तो minus V dP by V. अगर इसको तुमको मैग्नीट्यूड वाइज बात करनी होगी तो V dP by V.
क्लियर है? पर इसके डायमेंशंस, इसके यूनिट्स सब सेम है, सेम एज दैट ऑफ एनी टाइप ऑफ मॉड्यूलस विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और m1 L-1 T-2। यहाँ तक क्लियर? अब बीच में एक नया कैरेक्टर आएगा, पता है ना, कोई कोई मूवी में कोई नया कैरेक्टर 5 मिनट के लिए आ जाता है, छोटे पीरियड के लिए, छोटा स्मॉल इम्पोर्टेंस लेके आता है। वैसे इधर एक कैरेक्टर आएगा जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी स्टूडेंट करेंगे सी से। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल ले लिया, उसको बोल देते हैं कंप्रेसिबिलिटी। it is defined as the reciprocal of bulk modulus. So C is 1 by beta, तो C is, इसका उल्टा कर दो, dV by VdP हो गया। तो अभी इतना कर ही दिया, तो इसका ऐसा यूनिट बता दो, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, और उसके फिर डायमेंशन भी बता ही दो। देखो एक बात समझो, स्ट्रेस के डायमेंशंस क्या थे? m1 L-1, अब रेसिप्रोकल लोगे तो m-1 L1 and T2। ओके, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट, ये आपको मिलेगा। ऐसा यूनिट्स मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो गया। गुड। इफ यू गो टू good colleges for your degree, specifically on the engineering side, I don't know medical sciences में कैसा होता है, because I never had biology. I had but then I dropped anyways। तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे ना, तो एक्सपेरिमेंट करोगे और फिर आपको बोलेंगे ठीक है अगले हफ्ते सब अच्छे से लिख के लाओ, पूरा एम क्या था, एपरेटस क्या यूज़ किया, डायग्राम्स इन्वॉल्व, कंक्लूजन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्राफ व्राफ होगा तो प्लॉट करके आओ। और नेक्स्ट वीक जब आप जाओगे तो बिठा देते हैं वाइवा के लिए। पहले पिछले एक्सपेरिमेंट का वाइवा दो, उसका दाखिला करना। मैं तो करता था एक्चुअली, आओ बैठिए क्या क्या लिख के बताइए। तो एक एक्सपेरिमेंट है इंजीनियरिंग में वेयर यू मेजर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्रेसिबिलिटी? Physical significance of compressibility. I don't want to hear definition, मुझे पता है, it is reciprocal of bulk modulus। बताओ, what is the meaning of compressibility? You are trying to explain something through hand gesture, correct? Put it in words। You're right, you're saying it right। Do not, वो बता रहा है, तुम तो सोच नहीं पा रहे हो। He had done it correctly। हाउ मच इट कैन बी कंप्रेस उसने बोला भी वो, बट उसको थोड़ा और प्रॉपर, थोड़ा सा look at the equation right in front of you। no, इसका फिजिकल मतलब ये होता है कि जब मैं प्रेशर की वैल्यू 1 यूनिट से चेंज करता हूँ, यूनिट मतलब 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम में कितना चेंज होता है? व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज चेंज बाय 1 यूनिट? फॉर एग्जांपल, अगर पहले प्रेशर 10 पास्कल था, मैंने 11 कर दिया, तो हाउ मच वॉल्यूम हैज़ चेंज, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो फिजिकल मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी का, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज चेंज बाय 1 यूनिट। फिजिकल मतलब वो होता है उसका। गुड। देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस व्हिच इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नाम में ही है, रिजिडिटी, रिजिड।
मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, modulus of rigidity denoted by eta. So it is the modulus of elasticity associated with change in shape of a body, like a sphere or a cube. ठीक है, like a cube कर लेते हैं. स्पीयर का शेप चेंज हम लोग अच्छे से बता नहीं पाएंगे, इसलिए सो इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन शेप. गुड. It is also known as elasticity of shape. It is defined as the ratio of shearing stress to that of shearing strain. Good. So it is defined as the ratio of, किसका ratio है? Shearing stress to that of क्या है? Shearing strain. Okay. Then, if you remember, Young's modulus measures the opposition offered by a material to change in its length. Bulk modulus measures the opposition offered by a material to change in its volume. So, similarly, modulus of rigidity will measure the opposition offered by a material to change in its shape. Clear? Good. सब कुछ सेम है तो फिर सेम ही रखो. अभी वापस एक क्यूब इमेजिन कर लो, ए बी सी डी एफ जी एच, उसका बेस ए बी सी डी फिक्स कर दो, देन टॉप सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दो, सो दैट द शेप चेंजेस एंड नाउ इट बिकम्स अ पैरेललोपिपेड. गुड. ओके. तो फिर स्टोरी वही है, बोलो था ना, सेम पिक्चर बार बार देख के. नो. ओके. अभी क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा. 10 बार भी अगर रिपीट करना पड़े तो करना पड़ता है, क्या करेंगे अब. फिजिक्स सब पढ़ते हो ना तो सारी दुनिया भूल जानी पड़ती है. यू जस्ट हैव टू बी लाइक नो अदर थॉट्स. तुमको खुद को ऐसा मटेरियल बन के सोचना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या चेंज हुआ, कौन सा पैरामीटर आएगा, तब जाके फिजिक्स में स्कोर होता है, नहीं तो नहीं होता है. इट्स अ गुड सब्जेक्ट बिकॉज इट्स नॉट इजी सब्जेक्ट. इट इज़ ईजी इफ यू मेक इट ईजी. इट्स अप टू यू. गुड. चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं. कुछ तो नाम दे देंगे. ए बी सी डी ई एफ जी एच. देन इसके जो बेस है, बेस इसको रिवाइट फिक्स कर दिया, बड़बड़ बंद. तो वी हैव फिक्स्ड दिस बेस. और अगर आपको याद होगा, इस केस में हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स लगा देते हैं एफ टी. Let's apply it on the upper surface. So this is the tangential force applied, because of which except for the base छोड़ के सारे ही layer displace हो जाएंगे. All the layers except for the base displacement हो जाएगा उनका, and then the shape will change. The cube will become a parallelepiped. तो ये जो क्यूब है वो बन जाएगा parallelepiped. Okay, sufficient enough. Good. तो G आ गया G डैश पे, F आ गया F डैश पे, E is shifted to E dash, H is shifted to H dash. Let us call H dash as delta, L this as L, this angle as theta. Okay. फिर स्टोरी वही है. Consider a cube ABCD. whose base is fixed. तो मैं थोड़ा सा आलसी हूँ तो मैं आलसी वाला काम कर लेता हूँ. ये देखो, ये लिखा था ना पहले से. हाँ,
तो इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं. गुड. ओके, देन almost everything is same here. Almost everything is same here. तो हमने एक क्यूब लिया. क्या लिया? क्यूब. और क्यूब का बेस क्या किया? फिक्स. क्या कर दिया? बेस फिक्स. और उसके टॉप सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया और इसकी वजह से क्या हुआ? शेप चेंज हुआ. गुड. तो बिकॉज ऑफ विच सो द शेप ऑफ क्यूब चेंजेस टू अ पैरेललेलोपिपेड और उसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी एफ नहीं ए डैश एफ डैश जी डैश एच डैश. गुड. ओके. ओके. द शेप ऑफ द ओके ठीक है. गुड. चलो कॉपी एंड पेस्ट फॉर मी नॉट फॉर यू. चलो हो गया. अभी हमको शीयरिंग स्ट्रेस पता है क्या होता है, वो लिखेंगे नहीं. अब वी नो दैट. डू यू नो व्हाट इज शीयरिंग स्ट्रेस? जल्दी बताओ. टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया. वेरी गुड. तो शीयरिंग स्ट्रेस वी नो दैट. व्हाट डू वी नो इज शीयरिंग स्ट्रेस. Shearing stress is tangential force per unit area. And if you remember what is shearing strain? What is shearing strain? भूल गए. Shearing strain. What is shearing strain? Just a minute. What is shearing strain? Delta L by L या फिर tan थीटा या फिर थीटा. तो थीटा याद रखो अभी बेटर ऑफ. फिलहाल तो यही याद रखना. ओके. सो देयरफॉर व्हाट इज ईटा? विच स्ट्रेस बाय विच स्ट्रेस? जल्दी. टेंसाइल. हाँ, टेंसाइल. शेयरिंग की बात हो रही है. गुड. शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस strain. What is shearing stress? अभी लिखा था Ft by A और ये क्या है? थीटा. तो क्या हो गया? Ft by A थीटा. तो हो गया ये तीसरे टाइप का आपका मॉड्यूलस. सिंपल. तो तीन टाइप के कौन से मॉड्यूलस जल्दी बताओ. यंग्स, बल्क एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. यंग्स मॉड्यूलस इज एसोसिएटेड विद चेंज इन लेंथ, बल्क चेंज इन वॉल्यूम एंड रिजिडिटी. और नाम है रिजिडिटी. रिजिड मतलब जो जल्दी चेंज नहीं होता है, तो जिसका शेप चेंज नहीं हो पा रहा है या फिर रेजिस्ट कर रहा है उसको बोलोगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. पक्का. गुड. देन रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, यंग्स मॉड्यूलस इज व्हाट अपॉन व्हाट? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. बल्क is volume stress upon volume strain. Rigidity modulus is shearing stress upon shearing strain. What is the formula of Young's modulus? mgl upon pi r square delta L. mgl upon pi r square delta L. What is the formula of volume मतलब bulk modulus? vdp by dv. Okay. What is compressibility? Reciprocal of बल्क मॉडल्स. मतलब फॉर्मूला क्या आ गया? dp by dv by vdp. ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. डायमेंशंस m-1 L1 T2 माइनस मत बोलना, T2 होता है वो. गुड. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला बताओ. अभी लिखा था Ft by A थीटा. गुड. पक्का. So next topic is Poisson's ratio. है क्या ऐसा कुछ? है ना? Poisson's ratio है. अरे sequentially Poisson's ratio आना चाहिए. है क्या? अब वैसे इसको पॉइजन नहीं बोलते हैं, ये Poisson's ratio है. गुड. तो जैसे हमने हुक्स लॉ में देखा था, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यहाँ पे विद इन इलास्टिक लिमिट समथिंग इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग. अब वो समथिंग
क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग क्या है, वो समझने से पहले यू शुड नो वन थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब तक हम लोग ऐसा बोलते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वायर है जिस पे अगर हमने एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगा दिया, तो अगर हम स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. बट डिड यू रियलाइज लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसका डायामीटर मतलब थिकनेस कम हो रहा है. सो व्हेन a force is applied on any object, there is change in size in the direction of the force. तो जिस मतलब अगर मैं इसको स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में तो चेंज इन साइज होगा ही, चेंज इन लेंथ मतलब चेंज इन साइज, लेकिन उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, दैट इज चेंज इन डायमीटर और चेंज इन रेडियस. पक्का? तो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो थिकनेस कम होने वाला है. इट इज़ सिंपली बिकॉज मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इफ यू ट्राई टू इंक्रीज लेंथ, थिकनेस डिक्रीजेस, मतलब रेडियस और डायमीटर डिक्रीजेस. पक्का? गुड. तो अभी पहले अच्छे से समझ लो, फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस पॉइसन्स रेशियो. तो व्हेन a force is applied on any object, when a force is applied on any object, there is number one, change in size in the direction of force. And there is change in size perpendicular to the direction of force. So there is change in size perpendicular to the direction of force. Perpendicular to the direction of force. Good. चेंज इन लेंथ को तुम बोलते हो एलोंगेशन, राइट? और यहाँ पे थिकनेस कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है. तो रिमेंबर, एलोंगेशन इज ऑलवेज accompanied बाय श्रिंकिंग. को एक वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, नहीं? हाँ, कॉन्ट्रैक्शन. वेरी गुड. तो एलोंगेशन मतलब लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन, लेंथ बढ़ रहा है, इस अकम्पनीड बाय लैटरल कॉन्ट्रैक्शन. करेक्ट? तो अब याद रखना, क्योंकि लेंथ चेंज हो रहा है तो तुम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिफाइन करोगे, डेल्टा एल बाई एल. लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ साथ डायमीटर कम हो रहा है तो तुम और एक टाइप का स्ट्रेन डिफाइन करोगे, दैट इज लैटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. तो पहले हम लोग लैटरल स्ट्रेन डिफाइन करते हैं. तो लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमीटर या फिर चेंज इन रेडियस, क्योंकि डायमीटर और रेडियस का जो चेंज है वो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर. पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर. यहाँ तक स्टोरी क्लियर है क्या? क्योंकि ये काम का पैरामीटर है. हम बढ़ाने गए थे लेंथ तो बढ़ गया, लेकिन क्या कम हो गया? डायमीटर. तो हमने एक नए टाइप का स्ट्रेन डिफाइन कर दिया, चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर को क्या नाम दे दिया हमने? लैटरल स्ट्रेन. सो देयरफॉर लैटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज accompanied विथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. हम लोग बढ़ाने गए थे लेंथ, लेकिन साथ साथ में क्या चेंज हो गया? डायमीटर. विद इन इलास्टिक लिमिट, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. Within elastic limit, what is directly proportional to what? अरे इतना क्या डिफिकल्ट है ये. हम बढ़ाने गए थे लेंथ, डायमीटर हो गया कम, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमने पहले से डिफाइन करके रखा है. लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर भी डिफाइन कर दिया. लैटरल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू longitudinal strain. So within elastic limit,
lateral strain is directly proportional to, ये हुक्स लॉ है, सॉरी ये पॉइजन रेशो का लॉ जो बनेगा वो है, हुक्स नहीं, विद इन नेचुरल लिमिट लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बताओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की स्ट्रेन, यहाँ वहाँ पे एक स्ट्रेस था एक स्ट्रेन था, यहाँ पे दोनों स्ट्रेन है, और उल्टा सीक्वेंस मत लिख देना, लैटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सो देयरफॉर लैटरल strain is proportional to longitudinal strain. Longitudinal strain. Therefore lateral strain is equal to some constant, जिसको मैं सिग्मा बोल रहा हूं, into longitudinal strain. और जो सम कांस्टेंट है ना वो बन गया रेशो ऑफ, किसका रेशो, लैटरल स्ट्रेन टू दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोल देंगे पॉइजॉस रेशो, क्या बोल देंगे, सो पॉइजॉस रेशो सिग्मा इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके, सो देयरफॉर पॉइजॉस ratio is defined as the ratio of lateral उल्टा मत लिखना, lateral is defined as the ratio of lateral strain to that of लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि मैं 3-4 बार बोल रहा हूँ कि उल्टा मत लिखना, मतलब यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन याद रहता है, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन में गड़बड़, लैटरल टू लॉन्गिट्यूडनल की लॉन्गिट्यूडनल टू लैटरल, तो लैटरल इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल, तो जो सिग्मा आएगा याद रखना, लैटरल स्ट्रेन विल बी डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल विल बी डेल्टा एल बाई एल, याद रहेगा, विथ माइनस साइन, अब बोलेंगे -3, बताओ क्या कम होगा, लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर कम होगा एंड वाइस वर्सा, लेंथ कम होगा तो डायमीटर बढ़ेगा, तो दोनों में से एक नेगेटिव आएगा, और अगर तुमको ये याद नहीं हुआ तो पहला ही अपना जो क्वेश्चन आएगा डीपीपी का वो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, तो रिमेंबर यहाँ पे सिग्मा इज ऑलवेज नेगेटिव, ईदर बिकॉज ऑफ lateral strain or because of longitudinal strain. Pakka? Okay, so time for us to stop for today.